वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सामने कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, इधर से देखता हूं तो उनका नाम लेना अनिवार्य है, पर डर लगता है कहीं कोई नाम भूल न जाऊं। माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ देम, माई सैल्यूटेशंस टू ऑल ऑफ देम। जस्टिस M.M. Srivastava, Honorable Chief Justice, Rajasthan High Court, a remarkable human being। क्या शुरुआत की है, दिवाली का तोहफा दे दिया आपको। अपने तरीके से दे दिया। सर, as a member of this bar, I am grateful। Honorable Justice Indrajit Singh has his own mannerism, his own working pattern. I have not had the occasion to appear before him in court, but outside court, he is a gentleman। Advocate Pawan Sharma and Advocate Rajkumar Sharma, वो क्या कहते हैं, जय और वीरू। इनको सब नुक्से पता है। ये आते तो आज के दिन मेरा आना बहुत मुश्किल था। मैं कर्नाटक में था 2 दिन, IIT जोधपुर का कार्यक्रम था, गुवाहाटी में मेरा कार्यक्रम है, पर ये ऐसे व्यक्ति को लेकर आ गए, रमेश जी शर्मा। निर्णय पहले कर लिया, मुझे तो मोहर ही लगानी पड़ी। एडवोकेट भुवनेश शर्मा, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्माइल, ड्रेस। I have had the occasion to be member of Bar Council of Rajasthan. I could not become chairman and I could not be a representative to Bar Council of India because of a rule. Advocate Prahlad Sharma ji, I greet him, if he is not present in his absence, President of the High Court Bar Association, Metro 1, Metro 2, जयपुर डिस्ट्रिक्ट मेरे समय नहीं थे। आई एम एन ओल्ड टाइमर, बट presence of their district judges, members of the judiciary, on this occasion, I am greatly touched. Members of the bar, and particularly younger members of the bar. When I became vice president of the country, in the very first week or so, I was invited by the Supreme Court Bar Association. I had been its member. The Honorable Chief Justice and other judges were present. That was a good occasion. I have been in that bar for quite long. As a matter of fact, I became member of that bar a little before I was designated a senior advocate. So my connection with that bar was about 3 decades or more. पर मैं तो आपका हूं। और कहते हैं ना,
नाखून अंगुलियों से अलग नहीं हो सकते। I have been created by this bar. मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने ऐसे अधिवक्ता का कार्यालय अपनी कर्म स्थली बनाई, स्वर्गीय NLT ब्रिवाल जी। Very high ethical standards. I would say the highest we can ever have. Totally non-compromising when it comes to integrity. उनके दफ्तर से कोई खाली हाथ नहीं गया। जिस दिन बहस करते थे, मौकिल से फीस की बात नहीं करते थे, बहस के बाद ही करते थे। उनका सिद्धांत था। He valued his commitment to profession more than his bank balance. And the God was very kind to him. He was High Court judge not for a long period, a decade or so. But he became acting Chief Justice, was acting governor for about a year. ऊपर वाला न्याय में कभी कमी नहीं रखता है। ये मौका बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि the Honorable Chief Justice has set the tone of festivity। तो मैं दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो काम आज हुआ है, दो हुए हैं, कुछ उनमें विरोधाभास है थोड़ा सा। ई-लाइब्रेरी आज से 2 दशक पहले दिल्ली से 2 ट्रक रवाना किए मैंने, वो मेरी लाइब्रेरी थी। 1914 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुधांशु जी ऑल इंडिया रिपोर्टर मेरे पास था। क्रिमिनल लॉ जर्नल थी शुरू से, सुप्रीम कोर्ट केसेस थे 1969 से, लेबर लॉ जर्नल थे, बहुत से थे। आई हैड गॉन डिजिटल देन, तो मेरे दफ्तर में मैंने कोई किताब नहीं रखी, और तब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी। आज के दिन टेक्नोलॉजी का आलम यह है, if we speak in terms of Bharat home to 1/6 of humanity, we account for more than 50% of global digital transactions. यदि अगर आप इंटरनेट कंजम्पशन की बात करोगे प्रति व्यक्ति, so per person data consumption of internet for an Indian is more than that of China and USA taken together. हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, उनके हालात ये हैं कि you combine all the digital transactions of USA, UK, फ्रांस एंड जर्मनी, फिर भी हमारे उनसे 4 गुना है। ऐसे भारत में इसकी शुरुआत का बहुत बड़ा मतलब है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द लीडरशिप ऑफ द बार एंड ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द बार। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन is no longer a luxury. It is no longer a need. It is the only way out.
आज के दिन एंड माई यंग फ्रेंड्स विल अप्रिशिएट, मेरी उम्र के लोग कम करेंगे, पीसी जैन जी बैठे हैं, ये तो बहुत टेक्नोलॉजिकली आगे हैं पहले से, बट दे विल अप्रिशिएट कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैव कम। एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया है। वी आर एट द कस्प ऑफ अ वेरी बिग चेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, पहले अंग्रेजी के शब्द हुआ करते थे, हकीकत में इनका जो डायमेंशन है बहुत दूर तक ले जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत मदद कर सकती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि मेंबर्स ऑफ द बार को वर्किंग सेशंस कराने चाहिए। लेट देयर बी टेक्नोलॉजिकल सेशंस वेयर यू कम टू नो अबाउट इट। जो समय आप व्यतीत करोगे, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना समय बचा पाओगे। योर क्वालिटी विल गो अप। यू कैन गेट वराइड फॉर्मेट्स। और आपकी काबिलियत इसी चीज में है कि आप इंडिकेटर दो। जब ये सब कुछ अपने हाथ में है, उसको न यूज करना, मैं समझता हूं विल नॉट बी अ कंटेम्प्ट, डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है नहीं, बट नाइदर अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। मेरे में आपके साथ, खुद के साथ अन्याय होगा। आप संकल्प लीजिए कि द कमिंग ईयर यू वुड बी लर्निंग एवरी डे। और इससे जो बहुत बड़ी क्रांति देश में आई है, जिसको हम कहते हैं कि लंबे समय के बाद बड़ी मांग होती रही थी, अंग्रेजों के कानून को हम कब तक ढोते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। उनका कानून उनको बचाने के लिए था। द जर्नी फ्रॉम दंड विधान टू न्याय विधान is a significant journey, unshackling us from colonial mindset and colonial legacy. जुलाई से तो लागू हो गए हैं। This is boon to the young lawyers. You can now steal the march and please be part of it. यदि आप ऐसा करेंगे and you will mix it with technology, you will have great gain. I had the good fortune to preside the Council of States, the House of Elders, the Upper House, when these three legislations were passed. A very powerful committee went into each and every provision. It was analyzed at micro level. मैं आपको यही कह सकता हूं कि मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता था वकील होते हुए भी कि सरकार ने जो ये बदलाव किया है, कितना समय लगाया है, कितनी गहराई में जांच की है, एक एक प्रोविजन की पृष्ठभूमि की गई है। उसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को नया आयाम दिया गया है। आई अपील टू मेंबर्स ऑफ द बार that when Bharat is on the rise is envy of the world. We will be a developed nation at 2047. इसमें वकील समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम समाज के सबसे वाइटल स्टेक होल्डर हैं। जो बहुत बड़ा हवन हो रहा है देश में, यज्ञ है,
इसमें हर कोई अपनी आहुति दे रहा है ताकि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र बनाना आसान नहीं है। वी हैव टू इंक्रीज आवर पर कैपिटा इनकम 8 टाइम्स। ठीक है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 1 साल के अंदर हम जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमारी रफ्तार और उनसे कई ज्यादा है। दुनिया की एवरेज रफ्तार 4% के आसपास है। अमेरिका और बड़े देशों की 1 और 2 के बीच में है, हमारी 7 से ऊपर है। बहुत कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को न्याय सुलभ मिले, जल्दी मिले। जिसको न्याय की आवश्यकता है वो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाता है? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का नहीं, आपका दरवाजा खटखटाता है। वो आपके पास आता है। आप देश के हर कोने में हैं। यू आर प्रेजेंट इन एवरी टाउन। यू आर मेंबर्स ऑफ नोबल प्रोफेशन। लोग आपको देखते हैं। मेरे को 2 बातें कहनी इस विषय में। आपका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और बीमारी की तरह ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि न्याय के लिए दरवाजा न खटखटाया जाए। जिस इलाके में आप रहते हैं, मेक इट लिटिगेशन फ्री। इसका बहुत फायदा आपको होगा। उधर से क्या है कि भट्ट साहब तीखी नजर से देख रहे हैं। ठीक है ना भट्ट साहब? पिछली बार चर्चा इसी विषय पर हुई थी। और इसको करने के लिए क्या है कि ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, हाई कोर्ट्स का भी बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द फाउंडेशन। मेरा आग्रह रहेगा और व्यक्तिगत रूप से मैं प्रयत्नशील हूं। इफ वी हैव टू मेक जस्टिस अफोर्डेबल, justice accessible, we have to give people quality justice. Let us focus majorly on our district courts, our magistrates, our district judges, our young lawyers, our lawyers in the district courts work under very challenging conditions, very trying conditions. मैंने कोविड का दौर देखा है। सुप्रीम कोर्ट तक में कुछ वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ऐसे पेशे को कोई छोड़ता है तो वो आप और हम पर बहुत बड़ी टिप्पणी है। एंड देयरफॉर वी हैव टू हैंड होल्ड यंग लॉयर्स। वी मस्ट इन्वेस्ट इन आवर यंग लॉयर्स। On one hand, we have qualitative education for lawyers, law graduates. अच्छी संस्थाएं आ गई। ऐसा नहीं हो कि वो टिक नहीं पाए। और ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। किसी भी देश का आकलन, किसी भी सभ्यता का आकलन उसकी न्याय व्यवस्था से होता है। We have robust, independent judiciary. Our judiciary, right from Supreme Court down the line, is globally respected for intelligence, for commitment, for integrity, and for ever availability. बार और बेंच को ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द 2 हैं, इनकी आत्मा एक है।
इनमें कोई फर्क कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा मतभेद रहेंगे, हमेशा समस्याएं रहेंगे। मैं वकील समुदाय को बताता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रयास करते हैं, पर सब कुछ उनके बस में नहीं होता है। आउट ऑफ डेकोरम एंड रेस्पेक्ट वो शेयर नहीं करते। आई एम योर फुट सोल्जर, मैं इस काम में लगा हुआ हूं। एक बात है कि हमारे जो व्यवसाय हैं और कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रियल जाइंट्स, दे हैंड होल्ड एवरी इंस्टीट्यूशन। पता नहीं जुडिशियरी को हैंड होल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों नहीं करते हैं। काशीवाल जी ने जब ऐसे किया है तो कुछ योगदान कराएंगे जरूर, कोई ऐसा मौका आएगा तो। मेरा ये कहना है, वी मस्ट इंस्पायर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। दे मस्ट इन्वेस्ट इन द लोकल कोर्ट्स। उनके पास CSR फंड है, करना चाहिए उनको, बहुत अच्छा होगा उस मामले में। इस विषय पर फिर कभी, क्यों अरुण जी, ठीक है ना? मैं यही कहूंगा, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन अ डे लाइक दिस, क्योंकि कोई भी संस्था देश में चुनौतियों से परे नहीं है। Not an occasion to focus on this. I congratulate you all. अंत में ये कहूंगा, जो मैंने कहा कुछ विरोधाभास है, ई लाइब्रेरी और फिजिकल डायरी, ये तो कढ़ी में खीर हो गई। To make a beginning, I will make available 100 digital diaries to the President of the Bar. Rest can be replicated by involvement of the corporate. जब आपके समक्ष आया हूं तो कुछ मांगने का मन कर रहा है, और वोट नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि 20 जुलाई 2019 को मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उस दिन राष्ट्रपति महोदय ने मेरे खिलाफ वारंट जारी किया। जिंदगी में लोगों को वारंट से राहत दिलाता रहा, और वो वारंट था अपॉइंटिंग मी एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और उसका नतीजा बहुत भयानक था। माई सनद वो सस्पेंडेड। अब दोनों शब्दों में कुछ बदलाव होना चाहिए, वैसा ही बदलाव होना चाहिए। हमारे सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका के अंग को हम सबॉर्डिनेट क्यों कहते हैं? मैं प्रयासरत हूं। नो कोर्ट इज सबॉर्डिनेट, एवरी। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा, जब मजिस्ट्रेट फैसला लिखता है, जब डिस्ट्रिक्ट जज फैसला लिखता है, उनके मन में एक शंका रहती है, मेरे फैसले पर क्या टिप्पणी होगी। वो फैसला उसके भविष्य को निर्माण करता है। कहते हैं न कि अपने वाला जब मारता है तो छाया में पटकता है। We must have that empathy for them, sir. The chief has it. I have seen him while arguing together in a high court. He has never been a party when reflections were made against magistrates and judges. He distanced himself. I am aware of it. But this has to be our culture.
अंत के अंदर आप सभी को मैं एक निमंत्रण दे रहा हूं। इंडियन पार्लियामेंट नाउ हैज अ न्यू बिल्डिंग एंड योर मेंबर, सस्पेंडेड मेंबर, इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 50-50 के बैचेज में मेरे गेस्ट बनिए। मुझे अंदाजा है आपके संख्या बल का, पर मेरा दिल इतना विशाल है कि मैंने राज्यसभा में कहा कि इसमें डॉक्टर सुदेश धनखड़ विराजमान है। नमस्कार।